हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, कहाँ तक बताया था? सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि position and momentum of any particle cannot be measured with 100% accuracy, right? There will always be some error in both of them. There will always be some uncertainty in both of them, and product of uncertainty of the two quantities is given by formula h by 4 pi. P is mass into delta V, so delta V h upon 4 pi. This is significant for microscopic particles, small particles with small mass only, right? For macroscopic bodies, this was not significant, right? Two more points I'll add to it. Like first one, like we have discussed in like measurement, errors and error analysis, we cannot measure anything to accurately because it is a limit of this measuring instrument, right? For example, if I say I have to measure a length which is 7.9158 centimeter using a scale, I can read only 7.9 centimeter, right? So this uncertainty does not arises from the limit of measuring instrument. This is uncertainty is not this uncertainty. This uncertainty is not due to limitation of measuring instrument or skills of experimenter, right? So the one who is conducting those experiments, it does not depends on skills of his measuring skills, or it does not arises due to limitation of measuring instrument, right? It will always be there. You cannot measure measure position and momentum simultaneously with 100% accuracy. And explanation to this we have seen in previous class. I hope you remember, right? One more thing, right? Here delta x is what? Delta x is, hello, change in position, uncertainty in position, मतलब इसके बीच में पोजीशन होगी. तो ये जो है ये along some axis है, maybe it is along x axis or y axis, along some direction है, right? तो uncertainty अगर ये x axis है, ये y axis है, ये z axis है, तो uncertainty यहाँ पे हो सकती है, right? तो जिस डायरेक्शन में आप अनसर्टेनिटी बोल रहे हो वही डायरेक्शन में आपको मोमेंटम अनसर्टेनिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डेल्टा पी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जिस डायरेक्शन में आप डेल्टा एक्स मेजर कर रहे हो वही डायरेक्शन में आपको डेल्टा पी मेजर करना है, राइट? तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी शुड बी मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन, शुड बी मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन. आई होप समझ में आनी, तो वापस समझाता हूँ. सी डेल्टा एक्स इज व्हाट? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. अब पोजीशन अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में देखोगे तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होते हैं, तो फिर डेल्टा एक्स क्यों बोल रहे हो आप? डेल्टा आर वेक्टर बोलो. तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मेजर करना है. अगर डेल्टा एक्स इज पोजीशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस. So delta P should also be measured along x-axis only. समझा? Hello. yes sir. So this concludes our Heisenberg uncertainty principle. 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब एक जैसे, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है नहीं सिलेबस में अपने. उसके बाद स्टार्ट करते हैं लास्ट मॉडल. So सपोज करो क्वेश्चन है, given a tennis ball with, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, करो तो.
डन। बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करो। So 5.78 multiplied by 10 to the power -2. आवाज नहीं आ रही बेटा तुम लोग के। ठीक, मैं कर देता हूँ, सही किया होगा। डेल्टा x into delta v is what? h upon 4 pi m, right? So we have to measure uncertainty in velocity. So delta v is what we have to measure. So 6.63 into 10 raised to minus 34 upon 4, 3.1 mass is 100 gram, right? Upon delta x 10 raised to minus 2, 100 gram है ना, तो 10 raised to minus 1, right? ये हो गया। तो ये हो गया माइनस कितना हुआ, ये 100/8 हो गया, 100 का ऊपर जाके 80 हो जाएगा। तो 6.63 into 80 into 10 raised to minus 34. This is 20/3, 10 raised to minus 32, 20/3. So 2 is 16/3, 5.33. So approximately 5.33 into 10 raised to minus 32 meter per second. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, last ये question और कर दो, फिर topic change. Calculate uncertainty in measuring velocity of electron whose position can be measured with uncertainty of 1 angstrom. एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोजीशन 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज में हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तो उसमें वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी? ये भी बहुत आसान सा है। सी अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग वेलोसिटी, तो डेल्टा वी इज अगेन व्हाट यू हैव टू मेजर, सब सेम है, वैल्यूज डालनी है। 6.6 minus 34 upon 4 5 करने नहीं आता, होता है। क्या नहीं आता? वो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन से करने नहीं आता। तो प्रैक्टिस करो ना, चलो करके दिखाता मैं। सी ये -41 हो गया, ये ऊपर जाके 10⁻⁷ हो गया, राइट? अब 6.63 को आप 20/3 लिखो हमेशा। ये 4 पाई बड़ी कॉमन सी चीज है, बहुत जगह मिलेगा। तो 12.56 होता है, यानी 100/8 होता है, राइट? 9.1 को 9 ही लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5, ये हो गया कितना 28 9 3 27 3 135। तो 135 को अगर 136 लिख लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 17। 1/17 इंटू तो 100 और 10⁵ कर दो, तो 6 into 10⁵ हो गया। ये आंसर एकदम परफेक्ट है। आप कैलकुलेटर चला के देख लो, आसपास ही आएगा, मतलब विद इन 5% एरर हो गया। वापस बताऊं कैसे किया अप्रोक्सीमेशन? हाँ सर। हाँ सर। 6.63 को क्या लिखा? 20/3 लिखा। ये सब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो है ना, उसमें 2 लेक्चर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के ऊपर दिया हुआ, तो एक बार जाके देखो कैसे कैसे क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड है। 6.63 देखते ही 20/3 लिख देता हूँ। 4 पाई स्टैंडर्ड है, ये तो खूब मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। तो 4 पाई को देखते ही मैं 100/8 लिख देता हूँ। क्यों? 4 पाई मतलब 12.56 होता है, तो 12.5 क्या होता है? 100/8। तो आसान हो गया ना, 100 इधर गया, 8 गया ऊपर। नहीं, 9.1 है, तो 9.1 को आप 9 लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं, इतना लिख दो काफी है। अभी कैलकुलेशन किया तो ये 5 हो गया। 15 9 135, 8/135,
अब 17 का टेबल देखोगे आप तो 17 8 का 136 होता है, तो इसको 17 ही पकड़ लो, खत्म कर। ठीक। Yes. अब 100 हाँ 10⁻⁷ था, उसका 100 इधर कर दिया, 10⁵ बाजू कर दिया, 100/17, 17 6 102 होता है, हो गया, 6 लिख दिया, तो बराबर आएगा, थोड़ा बहुत ±5% रहेगा। Okay, समझा? sir. हाँ, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देख लो, बिकॉज ऑब्वियसली आईजी में आप लोगों का कैलकुलेटर का हैबिट था, तो वो भी छुड़ाना है। और जेई में और बोर्ड में भी, एनसीईआरटी में, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही एक्सपेक्ट करते, दे डोंट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट आंसर। जैसे आईजी में था, दे एक्सपेक्ट द आंसर इन अ रेंज, दे एक्सेप्ट द आंसर इन रेंज, वैसे यहाँ पे भी रहता है, मतलब एकदम ही एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक रेंज में रहना चाहिए। ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, so 3 मॉडल पढ़ लिया हमने, बोर मॉडल भी फाइनली फेल हो गया, वी हैव सीन द ड्रॉबैक्स ऑल्सो। अब ये फाइनल मॉडल, लास्ट मॉडल जो है, जो हमको पढ़ना है अपना सिलेबस में, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। So this is last model, सबसे important quantum mechanical model, is also known as wave mechanical model। क्या कहानी है उसके पीछे, I'll explain। तो see, as per Bohr's model of atom, अगर बोर मॉडल में आप जाओगे तो what he has said, electrons revolve around circular orbits। In fact, he has measured the velocity also and radius also, right? उसने तो precisely velocity भी claim कर दिया and radius भी claim कर दिया। Radius claim कर दिया, that means now you are sure about the position, right? Yes, sir. अच्छा, velocity आपने वैसे ensure कर दिया, मतलब you are sure about momentum, Yes, sir. right? But Heisenberg uncertainty principle doesn't allows you to measure both position and momentum with accuracy simultaneously। तो ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सेप्ट होते ही फेल हो गया, राइट? इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि ऐसे घूमे एक ऑर्बिट्स में, राइट? और आप उसको, उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन दोनों मेजर कर पाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? Yes, sir. Yes. ओके। उसने ऐसा क्यों किया था बोर मॉडल ने? बिकॉज बोर कंसिडर्ड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर ने क्या कंसिडर किया था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है हैज अ वेव कैरेक्टर, ये बोर मॉडल में इंटीग्रेट नहीं किया होता। क्या? वेव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रेट नहीं किया था, ये इसकी वजह से फेल हो गया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। ठीक है, तो फाइनली बाय बाय बोर मॉडल। अभी आ जाते हैं हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल। So let's understand few concepts of quantum mechanics, right? Quantum mechanics. Right. See, Newtonian mechanics you have started studying, right? एक chapter है physics में Newton's laws of motion. There we have started studying Newtonian mechanics, right? Force और उसके effects और कैसे क्या accelerate होता है, वो सब चीजें हमने पढ़ना start कर दिया। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ तक वैलिड है मालूम? न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज वैलिड ओनली, और सॉरी, गिव्स बेटर रिजल्ट्स ओनली विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ ही ये बराबर बैठता है, राइट? रिजल्ट बराबर देगा कौन? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बट नॉट विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्या रीजन है, क्यों? बिकॉज अगर आज आप, अभी तक आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, बट पढ़ोगे
तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो बना है उसमें हमेशा हमने पार्टिकल पे फोकस किया है। Any object or any particle continues to be in state of rest or state of motion unless until acted upon by external unbalanced force. So हर जगह पार्टिकल नेचर ही दिया हुआ है, राइट? इसमें वेव नेचर तो कंसिडर ही नहीं किया। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डुअल नेचर को कंसिडर नहीं किया। डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल इज नॉट taken into account, right? Agree to this? Yes, sir. Yes, sir. वेव हम अलग से पढ़ेंगे, पार्टिकल को हम अलग से पढ़ते हैं। हमने कभी ऐसा इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने देखा ही नहीं कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक है, और इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाया था क्यों लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि यू कैन नॉट डिटेक्ट इट्स वेव कैरेक्टर, नीदर यू कैन मेजर इट्स वेवलेंथ, राइट? तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में कोई टेंशन नहीं, बट फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम इज सो स्मॉल, मास इतना कम होता है कि मोमेंटम इतना कम होता है कि द wavelength corresponding to motion of electron is significant. It can be measured, is significant and can be measured, right? And its wave character can also be detected. ठीक है? तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गई फेल। कहाँ पे? is not applicable to, cannot be applied on माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑल, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। सो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, सिर्फ किस पे कर सकते हो? माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एक नई थ्योरी, नया मैकेनिक्स लाना पड़ेगा विच कंसिडर्स डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, राइट? So for microscopic particles, we need a special mechanics, a special theory, right? Which will integrate dual nature of wave and particle along with the previous science, right? जो पहले चल रहा था उसके साथ इसको भी अकाउंट में डाल लो, ऐसे एक नई थ्योरी लगेगी। So that is what we say is quantum mechanics. Quantum mechanics considers dual nature of wave and matter. आई बात समझ में? तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी करना है तो यू विल हैव टू फॉलो क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज इट इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेट डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। कन्विंसिंग लग रही बातें? हाँ सर। यस सर। Yes. ओके, तो अब एक बड़ी बुरी सी चीज पढ़ते हैं हम लोग, वेव function and Schrodinger wave equation। समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन जितना मुझे आता है, ठीक है? वेव फंक्शन एंड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये दो चीज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स में से उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। दो वेरी लिटिल इज देयर इन आवर सिलेबस, बट हायर सिलेबस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आई हैव नॉट स्टडीड बट हैव हर्ड, राइट? सो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड वेव फंक्शन, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, वेव फंक्शन क्या होता है और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आपके आगे की सारी चीजें बनी हुई है। सो वेव फंक्शन क्या है? ठीक, ये पार्टिकल है, राइट? एंड दिस पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव। आपने बोल दिया ये पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एंड इट हैज अ वेव नेचर, इट शोज वेव नेचर, राइट? अब देखो, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में एक वेव जा रही है, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं, अगर मैं एक
स्नैपशॉट लो किसका, एक ये स्ट्रिंग में एक वेव जा रही है, राइट। तो उसका अगर मैं स्नैपशॉट लेता हूं तो आई कैन सी अ पिक्चर लाइक दिस, राइट। ऐसा एक फॉर्म वेव का दिखता है मुझे, ठीक है। और तो और थोड़ी देर के बाद अगर एक पिक्चर लूंगा मैं, तो ये वेव आपको ऐसे दिखाई देगी, थोड़ी